how are you all? I'm sure you all are fine and taking good care of yourself. So children, let's begin with our next chapter, which is Introduction to HTML5. Let's get started. Look at the web page given below and answer the questions. Name the website, name the browser, what kind of content is there on the web page. Take the correct option. E-governance, e-commerce, e-learning. बच्चों यहाँ पे आपको पिक्चर दी गई है, आपको पिक्चर को देखकर जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उसके आंसर्स देने हैं. In the previous classes, you have learned about the internet as a vast source of information which is spread over the billions of web pages interconnected with each other. A collection of the related web pages is called a website, and the collection of all the interconnected websites on the internet is called World Wide Web, WWW. These web pages are stored somewhere in a powerful computer called web server, accessed with the help of their URL addresses on your computer. The web page contains information in the form of text, graphics, and animations organized in an attractive manner. Have you ever wondered how these web pages are created? Everything that you see on the web is a document written in a special language called HTML. In this chapter, we will learn about the HTML. तो बच्चों, हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा कैसे हम इंटरनेट का यूज़ करते हैं ताकि उसके थ्रू हमें वास्ट इन्फॉर्मेशन जो है वो किसी भी टॉपिक पे मिल सके. ठीक है, यहाँ पे आपके बिलियंस ऑफ वेब पेजेस जो होते हैं वो आपस में एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं. ये जो कलेक्शन होता है वेब पेजेस का, इसे वेबसाइट कहा जाता है. ठीक है, और इन वेबसाइट्स का जो कलेक्शन होता है इंटरनेट पे उसे वर्ल्ड वाइड वेब कहा जाता है. ये जो वेब पेजेस होते हैं ये एक पावरफुल कंप्यूटर में स्टोर होते हैं जिन्हें हम वेब सर्वर कहते हैं, जो कि एक URL एड्रेस की हेल्प से हम एक्सेस कर सकते हैं किसी भी कंप्यूटर में. जो वेब पेजेस होते हैं इनमें आपकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट होती है जिसमें आपके ग्राफिक्स भी होते हैं, टेक्स्ट भी होते हैं, एनिमेशंस भी होते हैं, और इन्हें इस तरह से ऑर्गेनाइज किया जाता है ताकि ये आपको क्या लगे, अट्रैक्टिव लगे और ये आपको रीडेबल भी हो, मतलब आपको ईजिली इसे पढ़ पाएँ. लेकिन क्या आपने सोचा ये जो वेब पेजेस होती हैं ये कहाँ पे क्रिएट किए जाते हैं? तो ये जो वेब होती हैं इन्हें एक डॉक्यूमेंट में क्रिएट किया जाता है एक स्पेशल लैंग्वेज के साथ जिसे हम HTML कहते हैं, और इस चैप्टर में हम HTML के बारे में ही पढ़ने वाले हैं. What is HTML? HTML stands for Hypertext Markup Language. It is a language used to create web pages. It uses some standard tags to tell your web browser how to display the web page you have requested. For this reason, it is called markup language. But as you have studied about the language that they need to be translated into the machine language, in the case of HTML, no such translation required. Just type save and run. Hypertext is the text that contains link to other documents. Markup refers to the codes assigned to the information to indicate their structural or logical relation to the rest of the data. HTML uses tags as markup codes in an HTML document. A tag is a symbol in HTML that has a special meaning. तो बच्चों HTML क्या होता है? HTML जो होता है इसका फुल फॉर्म होता है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. ये एक लैंग्वेज है जो कि आपके वेब पेज को क्रिएट करने के लिए यूज़ की जाती है. ये स्टैंडर्ड टैग्स को यूज़ करता है जो कि आपके वेब ब्राउज़र के बारे में बताता है. ठीक है, और कैसे आपका वेब पेज डिस्प्ले होगा ये भी इसी के थ्रू क्रिएट किया जाता है. ठीक है, हाइपरटेक्स्ट जो होता है ये आपका टेक्स्ट होता है जहाँ पे आपके लिंक्स होते हैं अदर डॉक्यूमेंट्स के. ठीक है, इसमें आप देखते होंगे यहाँ पे आपको ब्लू कलर के हाईलाइटेड कुछ वर्ड्स या कुछ सेंटेंसेस नज़र आते हैं. अगर आप उन पे जाओगे तो आपका जो कर्सर है वो हैंड के निशान में कन्वर्ट हो जाता है. फिर जब आप उन पे क्लिक करते हो तो आप दूसरे ही वेब पेज पे पहुँच जाते हो जिसमें आपको दूसरी इंफॉर्मेशंस देखने को मिलती है. जो टैग होते हैं HTML में वो सिम्बल्स कहलाते हैं. ठीक है, और इनके स्पेशल मीनिंग्स होते हैं. Inspiration. HTML was developed by Tim Berners-Lee in 1990. Features of HTML.
HTML is easy to learn and execute as it is based on tags. It is not a case-sensitive language. HTML is an interpreter-based language as its commands are executed instructions by instruction. It is a platform-independent language, which means it can be executed on any operating system and is supported by all browsers. It allows the use of different tags to make the document look more attractive. It provides paragraph alignment features that help us align our text as per our choice. Images, tables, and animated text or graphics can be inserted on the web page using tags. HTML also allows linking of different web pages. अब बच्चों हम HTML के फीचर्स के बारे में जान लेते हैं. ठीक है, HTML जो होता है वो ऐसा प्रोग्राम होता है जो कि ईजी टू लर्न होता है और आप इसके जो टैग्स होते हैं ईजिली उन्हें एग्जीक्यूट कर पाते हो. ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं होती. ठीक है, और HTML जो होता है वो एक तरह का इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेज होती है. ठीक है, इसकी जो कमांड्स होती हैं वो एग्जीक्यूट की जाती हैं इंस्ट्रक्शन बाय इंस्ट्रक्शन, और साथ ही साथ ये आपका प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है, जिसका मतलब होता है कि आप इन्हें एग्जीक्यूट कर सकते हो किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे, और ये साथ के साथ सारे ब्राउज़र्स को सपोर्ट करता है. ये आपको डिफरेंट टैग्स को यूज़ करने के लिए अलाउ करता है और आपकी जो डॉक्यूमेंट है उसे अट्रैक्टिव भी बनाता है. ये आपको पैराग्राफ अलाइनमेंट प्रोवाइड करता है. ठीक है, जिसमें आप अपने टेक्स्ट को अलाइन कर सकते हो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग. तो बच्चों HTML के थ्रू आप डिफरेंट टैग्स को यूज़ कर सकते हो जिससे आप अपनी डॉक्यूमेंट को अट्रैक्टिव बना सकते हो. ठीक है, इसमें आप पैराग्राफ्स को अलाइन कर सकते हो जिससे आप अपने जो डॉक्यूमेंट है उनके टेक्स्ट को अपने हिसाब से, अपनी चॉइस के हिसाब से अलाइन कर सकते हो. इसमें आप इमेजेस, टेबल्स एंड एनिमेटेड टेक्स्ट ग्राफिक्स को भी इंसर्ट कर सकते हो. ठीक है, HTML जो होता है ये आपको अलाउ करता है ताकि आप डिफरेंट वेब पेजेस में क्या कर सकते हैं, लिंक कर सकते हैं, जा सकते हैं. फैक्ट टू नो, HTML is not a programming language but rather a markup language which describes the structure of a web पेज. HTML जो है ये आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है बल्कि ये एक मार्कअप लैंग्वेज है जो कि आपके वेब पेज के स्ट्रक्चर को दर्शाती है. सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड टू क्रिएट एंड व्यू अ वेब पेज. टू क्रिएट एंड व्यू अ वेब पेज वी नीड द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर. फर्स्ट HTML tags, second web browser. Web browsers are used to view the HTML documents. Some commonly used web browsers are Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge, and Opera, etc. HTML tags are the special keywords enclosed between the angle brackets, opening tag and closing tag that conveys a meaning to the web browser about how to display the contents followed by them. Most of the tags are used in pairs, i.e. with each starting tag there is an ending tag. Example, to display some text in bold letters, the HTML code is opening tag B, closing tag, starting tag, text, opening tag /B, closing tag, ending tag. The starting tag tells the browser from where to start the formatting, and ending tag tells up to where the text has to be formatted. The only difference between start and end tag is that the end tag keyword is preceded by a forward slash. These type of tags having a starting as well as ending tags are called container tags or non-empty tags. There are some tags which do not need the ending tag. Example, to draw a horizontal line across the documents. The HTML tag is opening tag, HR, closing tag. These kinds of tags are called empty tags. ठीक है, तो बच्चों हम सॉफ्टवेयर के बारे में जान लेते हैं कि सॉफ्टवेयर क्या क्या रिक्वायर्ड होता है किसी भी पेज को क्रिएट और व्यू करने का. किसी भी पेज को देखने और क्रिएट करने के लिए आपको फॉलोइंग सॉफ्टवेयर चाहिए होते हैं. सबसे पहले HTML टैग चाहिए होता है, उसके बाद आपको वेब ब्राउज़र चाहिए होता है. वेब ब्राउज़र क्या होता है? वेब ब्राउज़र जो होते हैं वो आपके HTML डॉक्यूमेंट्स को देखने के लिए यूज़ किए जाते हैं. ठीक है, और कॉमनली यूज़ वेब ब्राउज़र जो है आपके यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे कि गूगल क्रोम है, मोज़िला फायरफॉक्स है, इंटरनेट एक्सप्लोरर एक्सेट्रा.
अब HTML टैग्स क्या होते हैं? HTML टैग्स जो होते हैं ये आपके स्पेशल कीवर्ड्स होते हैं जो कि एंगुलर ब्रैकेट में ही एनक्लोज किए जाते हैं। ये आपके ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग के बीच में ही एनक्लोज किए जाते हैं। ठीक है, इसका मतलब होता है कि आपका जो कंटेंट है वो कैसे वेब ब्राउज़र में डिस्प्ले होगा। काफ़ी सारे जो टैग्स होते हैं वो पेयर में ही काम करते हैं। ठीक है, जिसमें आपका स्टार्टिंग टैग और एंडिंग टैग आता है। जैसे आपको बोल्ड लेटर्स में दिखाना है तो आपको इस तरह से जो बी है उसको स्टार्टिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग के साथ ही उसे एंड करना है। ठीक है, जो स्टार्टिंग टैग है वो बताता है कि आपका जो ब्राउज़र है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, और जो एंडिंग टैग है वो बताता है कि आपका जो टेक्स्ट है वो किस तरह से एंड में फॉर्मेट किया जाएगा। अब यहाँ पे डिफरेंस जो है स्टार्ट एंड एंड टैग के बीच में वो सिर्फ इतना है कि जो आपका एंड टैग होता है वो आपका एक स्लैश के साथ ही प्रोसीड किया जाता है। ठीक है, ये जो टाइप्स ऑफ टैग्स होते हैं इनमें आपके स्टार्टिंग एंड एंडिंग टैग्स होते हैं जिन्हें हम कंटेनर टैग्स और नॉन एम्प्टी टैग्स कहते हैं। कुछ और टैग्स भी होते हैं जिनमें कि आपको एंडिंग टैग्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ठीक है, जैसे जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसकी रिक्वायरमेंट आपको नहीं होती, इन्हें हम एम्प्टी टैग्स कहते हैं। More to know, HTML tags are not case sensitive and can be written using capital or small letter, but to make them stand out of the rest of the text we use capital letters to write HTML tags। तो बच्चों आपके जो HTML tags होते हैं ये आपके लिखे जाते हैं कैपिटल और स्मॉल लेटर्स में। ठीक है, बट आप इनको स्टैंड आउट करने के लिए आपको कैपिटल लेटर्स को ही HTML टैग्स के साथ राइट करना पड़ेगा। टैग एट्रीब्यूट्स। टैग एट्रीब्यूट्स आर द स्पेशल वर्ड्स यूज इनसाइड द ओपनिंग टैग टू कंट्रोल द टैग्स बिहेवियर। देयर could be more than one attribute for a tag separated by space in between. Opening tag body color BG color equal to inverted comma red text equal to inverted comma green. Tag name attribute attribute value. All the attribute value should be enclosed in the double quote marks except letters A to Z, numbers 0 to 9, hyphen, dash और period dot। ठीक है बच्चों, यहाँ पे हमें बताया गया है कि टैग एट्रीब्यूट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं। टैग एट्रीब्यूट्स जो होते हैं ये आपके स्पेशल वर्ड्स होते हैं जो कि ओपनिंग टैग के साथ लिखे जाते हैं। ठीक है, ताकि आप अपने टैग को कंट्रोल कर सको, उसके बिहेवियर को भी आप कंट्रोल कर सको। यहाँ पे आपके टैग्स जो होते हैं वो 1 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए और हमेशा आप उन्हें सेपरेट करोगे स्पेस के साथ, मतलब उनके बीच में आप स्पेस ज़रूर दोगे। इस तरह से जैसे आपको यहाँ पे दिया गया है, आपको अगर बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो आपको इस तरह से ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग के साथ साथ आपको इन्वर्टेड कॉमा भी लगाना है ताकि आप उन्हें स्पेसिफाई कर सको कि आपको पर्टिकुलरली कौन सा कलर चाहिए अपने बैकग्राउंड में। थिंक बॉक्स। If you remove the ending tag from a container tag, will it become an empty tag? बच्चों आपको बताना है अगर हम ending tag को रिमूव कर देते हैं किसी कंटेनर टैग से तो क्या वो empty tag कहलाएगा? HTML5 document structure. The HTML is divided into 3 main parts. Opening tag, HTML closing tag, opening tag, head closing tag, opening tag, body closing tag. Opening tag HTML closing tag, it tells the browser that it is an HTML document. Opening tag head closing tag, it is used to specify the heading of the document that appears at the title bar of the browser window. Opening tag body closing tag, it contains the data to be displayed in the web browser. The basic structure of HTML document is given alongside. These elements are called document structure elements. Let us discuss these tags in detail. तो बच्चों जो आपका HTML डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर होता है वो कुछ 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। ठीक है, सबसे पहले आपका HTML होता है जो आपका ब्राउज़र के बारे में बताता है कि ये आपकी HTML डॉक्यूमेंट है। इसके बाद आता है आपका हेड जो आपका डॉक्यूमेंट का स्पेसिफाइड हेडिंग को दर्शाता है। ठीक है, इसके बाद आती है आपकी बॉडी जो वेब ब्राउज़र में जो कंटेंट आप डालते हो वो आप अपनी बॉडी में ही डिस्प्ले करते हो। ठीक है, ये आपका HTML डॉक्यूमेंट का बेसिक स्ट्रक्चर कहलाता है। ये जो एलिमेंट्स होते हैं इन्हें हम डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर एलिमेंट्स भी कहते हैं और इनके बारे में हम आगे और अच्छे से जानेंगे।
The opening tag exclamation mark doc type HTML closing tag. The opening tag exclamation mark doc type HTML closing tag is not an element in HTML. It is a document type declaration that tells the browser about the version of HTML. Opening tag exclamation mark doc type closing tag informs the browser that it is actually an HTML5 document. The opening tag HTML closing tag, it is a container element started by opening tag HTML closing tag and ended by opening tag slash HTML closing tag. It defines the document as a HTML document. It does not impact on the appearance of the document but tells the browser that the current document is a HTML document. HTML tag contains the head and body tags which can further contain a variety of other tags. The opening tag head closing tag. It is a container tag started by opening tag head closing tag and ended by opening tag slash head closing tag. It defines the HTML document header, i.e. it displays information about the document. It does not affect the appearance of document in the browser. The opening tag title closing tag. It is a container tag started by opening tag title closing tag and ended by opening tag slash title closing tag. The text inside it only appears at the top of the browser window, i.e. at the title bar. The opening tag body closing tag. It is a container tag started by opening tag body closing tag and ended by opening tag slash body closing tag. It includes the main contents of your web page. तो बच्चों हम इनके बारे में जान लेते हैं. जो आपका डॉक टाइप HTML होता है ये कोई एलिमेंट नहीं होता HTML में, ठीक है, बल्कि ये एक डॉक्यूमेंट टाइप होता है जो कि आपके ब्राउज़र के बारे में डिक्लेरेट करता है, मतलब आपको बताता है कि आपका ब्राउज़र जो है वो HTML का कौन सा वर्जन है. ठीक है, डॉक टाइप जो होता है ये इन्फॉर्म करता है ब्राउज़र की कि आपका जो डॉक्यूमेंट है वो एक्चुअल में HTML5 डॉक्यूमेंट है. इसके बाद आता है HTML टैग. ये एक कंटेनर एलिमेंट होता है जो कि इस तरह से ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग के साथ ही स्टार्ट होता है और साथ ही साथ ये एंड होता है स्लैश के साथ, मतलब आपका ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग सेम रहता है, बस वहाँ पे एक स्लैश जो है वो ऐड हो जाता है. ये डिफाइन करता है कि आपकी जो डॉक्यूमेंट है वो एक HTML डॉक्यूमेंट है. ठीक है, इससे आपके डॉक्यूमेंट के अपीयरेंस पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, ये बस बताता है कि आपका जो डॉक्यूमेंट है वो HTML है. ठीक है, इसके बाद आता है हेड टैग. ये आपके डॉक्यूमेंट की हेडिंग को बताता है. ये डिफाइन करता है कि आपके जो डॉक्यूमेंट है उसकी हेडिंग जो है वो इस तरह से है और ये आपके डॉक्यूमेंट की जो डिस्प्ले इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में बताता है. ठीक है, साथ ही साथ ये भी आपके जो डॉक्यूमेंट है ब्राउज़र में उसके अपीयरेंस को बिल्कुल भी इफ़ेक्ट नहीं करता. नेक्स्ट आता है टाइटल टैग. ठीक है, ये भी जो आपके ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग है उसी के साथ ही स्टार्ट होता है और इसके अंदर आपका टेक्स्ट जो है वो अपीयर होता है ऑन द टॉप ऑफ द ब्राउज़र विंडो. इसके बाद आता है आपका बॉडी टैग. ठीक है, ये भी स्टार्ट होता है आपका ओपनिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग के साथ. ठीक है, और इसमें आपका मेन कंटेंट जो होता है वो इंक्लूड होता है जो भी आपके वेब पेज का होता है. Creating and saving an HTML document. We will use the Notepad as the text editor to create an HTML document. The steps to create and save the HTML file in Notepad are given below. Step 1. Click on Start button. Scroll down the list and click on Windows, Accessories, Notepad. The Notepad window will appear. Type the given program in the Notepad. Step 2. Now select the file menu and click on Save As option. Save As dialog box appears. Choose the desired location and enter the name in file name box with .html extension as shown. Step 3. Now click on the Save button to save the files. तो बच्चों हम जान लेते हैं कैसे हम अपनी HTML जो डॉक्यूमेंट है उसे क्रिएट करते हैं और फिर उसे सेव करते हैं. इसके लिए हमें नोटपैड जो है वो चाहिए होगा एज ए टेक्स्ट एडिटर ताकि हम अपनी जो HTML डॉक्यूमेंट है उसे क्रिएट कर सकें. अब यहाँ पे कुछ स्टेप्स हमें दिए गए हैं वो हम जान लेते हैं कैसे हम अपनी HTML डॉक्यूमेंट को क्रिएट एंड सेव करेंगे. सबसे पहले आपको स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है, उसके बाद आपको
स्क्रॉल डाउन करके लिस्ट में जाना है, देन आपको विंडोज़ एसेसरीज पे जा करके नोटपैड पे क्लिक करना है। ठीक है, आपके सामने नोटपैड विंडो जो है वो ओपन हो जाएगी। फिर आपको अपने प्रोग्राम को नोटपैड में टाइप करना है। देन आपको फाइल मेन्यू सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको सेव एज ऑप्शन पे जाना है। सेव एज डायलॉग बॉक्स जो है आपके सामने अपीयर हो जाएगा। आपको जो डिज़ायर्ड लोकेशन है जहाँ पे आप अपनी फाइल को सेव करना चाहते हैं उस लोकेशन पे आप जाएंगे या उसे चूज़ करेंगे। देन आप फाइल नेम को टाइप करेंगे फाइल नेम बॉक्स में, जिसके साथ आपका .html एक्सटेंशन जो है वो ऐड हो जाएगा। देन आपको सेव बटन पे क्लिक करना है, आपकी फाइल जो है वो सेव हो जाएगी। टेक टिप, use Ctrl+S to open save as dialog box. Viewing an HTML document. After creating and saving a HTML document, you need to open it into a web browser. To view it, to open a HTML document into web browser, perform the following steps. Step 1, open the folder in which you have saved the HTML document. Step 2, locate the file and double click it. Web page opens in your default web browser window. अब बच्चों यहाँ पे हम जान लेते हैं कैसे हम अपनी HTML डॉक्यूमेंट को व्यू करेंगे। ठीक है, आपने अपनी डॉक्यूमेंट बना ली, क्रिएट कर ली, उसे सेव भी कर लिया, लेकिन अगर आप उसे व्यू करना चाहते हैं तो यहाँ पे कुछ स्टेप्स जो है वो हमें दिए गए हैं। आपको सबसे पहले फोल्डर को ओपन कर लेना है जिसमें आपने अपनी HTML डॉक्यूमेंट को सेव किया था। उसके बाद आपको फाइल को लोकेट करना है और उस पर डबल क्लिक करना है। ठीक है, वेब पेज जो है वो ओपन हो जाएगा डिफ़ॉल्ट वेब ब्राउज़र विंडो में। फैक्ट टू नो, it is very important to give .html or .stm extension to the file name, otherwise your document will be saved as a text file rather than web document. तो बच्चों ये ज़रूरी होता है कि आपको जब अपने फाइल का नाम सेव कर रहे होते हो तो उसके साथ आपको एक्सटेंशन जो है वो देना ज़रूरी होता है। ठीक है, अदरवाइज जो है आपकी फ़ाइल जो है वो टेक्स्ट फाइल की तरह सेव हो जाएगी। ठीक है, वो वर्ड डॉक्यूमेंट की तरह सेव नहीं होगी। Some commonly used tags in HTML. Let us learn about the various tags and their attributes which help in the formatting of a web page. Body tags. HTML opening tag, body closing tag defines the main content of an HTML document which displays on the browser. Body tag has many attributes. Using that we can change appearance of the web page. Body tag has many attributes. Some commonly used attributes are described below in the table. Tags, attributes, description, how to use. Opening tag, body closing tag. BG color, it is used to set the background color of the web page. Opening tag, body BG color equal to inverted comma color name inverted comma closing tag. Text, it is used to set the color of the text on a web page. Opening tag, body text equal to inverted comma color name inverted comma closing tag. Background, it is used to set an image for the background. The image will tile itself to form the background of your web page. Opening tag, body background equal to inverted comma file name closing tag. Margin, the margin attribute is used to specify left and top margins for the web content. For this, left margin and top margin are used respectively. Opening tag, body top margin equal to inverted comma value in pixel left margin inverted comma value in pixel closing tag. The code show the use of BG color and text attribute of opening tag, body closing tag. तो बच्चों बॉडी टैग्स के बारे में हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, बॉडी टैग्स जो होते हैं ये आपके टैग्स होते हैं जिसमें आपका जो मेन कंटेंट है वो डिस्प्ले होता है आपके HTML डॉक्यूमेंट में। ठीक है, जो बॉडी टैग्स होते हैं इसके काफ़ी सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं, जैसे कि आप उसकी अपीयरेंस को चेंज करना चाहते हो, उनके अलाइनमेंट को चेंज करना चाहते हो, मार्जिन्स को चेंज करना चाहते हो, तो आप कुछ सर्टेन एट्रीब्यूट्स के साथ उन्हें चेंज कर सकते हो। जैसे यहाँ पे आपको एट्रीब्यूट जो है वो दिखाए गए हैं। अगर आपको बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो आपको इस तरह से वहाँ पे एट्रीब्यूट जो है वो देना होगा। टेक्स्ट, अगर आप अपने टेक्स्ट का कलर चेंज करना चाहते हैं तो इस तरह से आप उसके टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। अगर आपको कोई इमेज सेट करनी है अपने वेब ब्राउज़र के बैकग्राउंड में तो आप इमेज भी जो है वो सेट कर सकते हैं।
आप मार्जिन्स भी सेट कर सकते हैं, ठीक है। आप लेफ्ट एंड टॉप मार्जिन और आपके बॉटम राइट इस तरह से आप मार्जिन्स को सेट कर सकते हैं, ठीक है। लेट्स सी द यूज ऑफ बैकग्राउंड एट्रीब्यूट टू सेट एन इमेज फॉर द बैकग्राउंड। लेट्स सी द यूज ऑफ मार्जिन एट्रीब्यूट टू सेट द मार्जिन फॉर वेब कंटेंट। Heading tag. Heading is used to emphasize the text. HTML provides 6 levels of headings. The opening tag, hn closing tag, opening tag / hn closing tag are used to apply various size headings to the text enclosed within them. Opening tag h1 closing tag displays the text in the largest size and is mainly used for main headings. Opening tag h6 closing tag is the smallest size and is used for subheadings. Tag attributes, description, how to use. Opening tag hn closing tag, opening tag / hn closing tag, where n varies from 1 to 6. Align. It is used to define the alignment of the heading. Opening tag hn align equal to inverted comma alignment closing tag alignment can be left, center और right. तो बच्चों हेडिंग टैग जो होते हैं ये आपके टेक्स्ट को एम्फसाइज करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। HTML जो होता है ये आपको 6 लेवल ऑफ हेडिंग जो है वो प्रोवाइड करता है और इस तरह से आप हेडिंग जो है वो कंटेनर टैग्स के साथ जो आपका एम्प्टी और आपका जो ओपनिंग टैग्स होता है, क्लोजिंग टैग्स होता है, इसके साथ आप उनको अप्लाई कर सकते हो, जिसके थ्रू आप वेरियस हेडिंग्स को अप्लाई करते हो या उन्हें क्रिएट करते हो या इंसर्ट करते हो, ठीक है। इसके थ्रू आप अपनी हेडिंग के साइज़ को भी घटा या बढ़ा सकते हो। यहाँ पे आपको कुछ टैग्स दिए गए हैं और उसके एट्रीब्यूट्स दिए गए हैं, ठीक है, कि किस तरह से आप इन्हें अप्लाई करते हो। फैक्ट टू नो, द लाइन ब्रेक विल ऑटोमेटिकली बी इंसर्टेड आफ्टर द ओपनिंग टैग hn क्लोजिंग टैग एंड ओपनिंग टैग / hn क्लोजिंग टैग। तो बच्चों यहाँ पे फैक्ट दिया गया है कि लाइन ब्रेक जो है वो ऑटोमेटिकली इंसर्ट हो जाता है जब भी आप जो अपना हेडिंग कंटेनर टैग है उसे प्रोवाइड करते हैं। लेट्स सी हाउ टू डिस्प्ले वेरियस हेडिंग्स इन डिफरेंट अलाइनमेंट्स। Paragraph and line break tag. To start new paragraphs in an HTML document, you use paragraph tags. You can use the opening tag p closing tag to start a new paragraph and the align attribute to align it. The tag opening tag p closing tag is used at the beginning of a paragraph and will insert a line break with an extra line space where you use it. Tag attribute description, how to use. Opening tag p closing tag aligns to align a paragraph with the specified alignment. Opening tag p aligns equal to inverted comma alignment closing tag. Alignments can be left, right or center. You can insert a line break to instruct the browser to break the text and go to a new line. You can use the line break tag, opening tag br closing tag to break the text. Web browsers normally wrap text automatically. When a line of text reaches the right side of the browser window, it breaks and continues on the next line. You can also use the opening tag br closing tag to add blank lines between the paragraphs. Opening tag br closing tag is an empty element, which means that opening tag br closing tag only has an opening tag. तो बच्चों हम पैराग्राफ एंड लाइन ब्रेक के बारे में जान लेते हैं। अगर आपको न्यू पैराग्राफ स्टार्ट करना होता है HTML डॉक्यूमेंट में तो आपको पैराग्राफ टैग्स को यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। जब आप इन्हें अप्लाई करते हो तो आप न्यू पैराग्राफ को क्या करते हो, स्टार्ट करते हो, ठीक है, और इसमें आप अपने अलाइन को भी एट्रीब्यूट देते हो। ये जो टैग है ये बिगनिंग में, किसी भी पैराग्राफ की बिगनिंग में ये स्टार्ट किया जाता है, ठीक है, और ये एक लाइन ब्रेक जो है वो प्रोवाइड करता है, किसके साथ, एक एक्स्ट्रा लाइन स्पेस के साथ, ठीक है। इस तरह से आपके जो टैग है, पैराग्राफ टैग है, वो यूज़ किया जाता है। तो बच्चों इसमें आप लाइन ब्रेक को भी इंसर्ट कर सकते हो ताकि आप अपने ब्राउज़र को इंस्ट्रक्ट कर सको कि कहाँ से आपका जो टेक्स्ट है वो ब्रेक करना है और दूसरी लाइन में, न्यू लाइन में आपको स्टार्ट करना है या जाना है, ठीक है। आप लाइन ब्रेक को टैग, ओपनिंग टैग br क्लोजिंग टैग के साथ भी स्टार्ट कर सकते हो ताकि आपका जो टेक्स्ट है वो ब्रेक हो सके, ठीक है। वेब ब्राउज़र जो होता है वो आपके
टेक्स्ट को क्या करता है, रैप करता है ऑटोमेटिकली। जब आप वहाँ पे इंस्ट्रक्ट कर देते हो कि आपको वहाँ पे लाइन का ब्रेक चाहिए, तो इससे आपके वेब ब्राउज़र में भी आपकी जो न्यू लाइन है वो नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट हो जाती है। हॉरिजॉन्टल रूल टैग। The opening tag HR closing tag is used to insert a horizontal line in your web page. You can also use it to divide your web page into horizontal sections. It is an empty tag. Tags, attributes, description, how to use. Opening tag HR closing tag size. It defines the size, thickness of the horizontal rule in pixels. Opening tag HR size equal to inverted comma number of pixels. For example, opening tag HR size equal to 4, closing tag will insert the horizontal line with the size of pixels as 4. Let's see the use of horizontal rule tag with size and color attribute. तो बच्चों यहाँ पे हम हॉरिजॉन्टल जो रूल टैग है उसे इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए हम HR जो टैग है इसे हम इंसर्ट करते हैं ताकि हम अपने जो डॉक्यूमेंट है, वेब पेज है, वहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन को डिस्प्ले कर सकें या इंसर्ट कर सकें। ठीक है, आप इसे यूज़ कर सकते हो ताकि आपका पेज जो है वो 2 हॉरिजॉन्टल सेक्शंस में क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए, और ये एक तरह का एम्प्टी टैग कहलाता है। फॉन्ट टैग्स। Font tags with the required attribute are used to change the font type, size and color of the text enclosed within these tags. There are 7 font sizes in all. Size 1 is the smallest and size 7 is the largest, opposite to the size convention used for headings. Tags, attributes, description, how to use. Opening tag, font, closing tag, color to select the color for the font of your text. Opening tag, font color equal to inverted comma color name, closing tag. Opening tag slash font, closing tag, size to select the font size of your choice. Opening tag, font size equal to n, closing tag, and varies from 1 to 7. Face to specify the font type applied to the normal text in the web page. Opening tag, font face equal to inverted comma font inverted comma, for example, in opening tag font face equal to inverted comma Arial, closing tag. Let's see the use of font tag with size, color and face attributes. तो बच्चों हम जान लेते हैं font tag को हम कैसे यूज़ करते हैं। font tags जो होते हैं ये आपके एट्रीब्यूट्स को रिक्वायर करते हैं, ठीक है, और ये आपके फॉन्ट के टाइप, साइज एंड कलर को भी चेंज करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, लेकिन इन्हें भी आप एनक्लोज करेंगे विद इन दीज टैग्स। ठीक है, बिना टैग्स के आप इन्हें अप्लाई ही नहीं कर सकते। यहाँ पे 7 फॉन्ट साइज़ जो होते हैं वो अवेलेबल होते हैं। ठीक है, साइज़ 1 जो होता है ये सबसे स्मॉलेस्ट साइज़ माना जाता है और साइज़ 7 जो है वो लार्जेस्ट साइज़ माना जाता है। और इस तरह से ये टैग्स होते हैं जिनके एट्रीब्यूट्स होते हैं, ठीक है, और जो आपको डिस्क्राइब करके दिखाया गया है। जैसे कि कलर जो होता है ये आपके फ़ॉन्ट के कलर को सेलेक्ट करने के लिए चूज़ किया जाता है। साइज़ जो होता है ये आपके फ़ॉन्ट के साइज़ को सेलेक्ट करने के लिए चूज़ किया जाता है। और फेस जो होता है ये आपके फ़ॉन्ट टाइप को अप्लाई करने के लिए यूज़ किया जाता है। यूज़ ऑफ बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन टैग्स टू एम्फसाइज और हाईलाइट अ स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द टेक्स्ट, मार्क द text bold, italic and underline. Let us study the tags for the same. Tag description. Opening tag B, closing tag displays the enclosed text in bold face. Opening tag I, closing tag displays the enclosed text in italic face. Opening tag U, closing tag displays the enclosed text with underline. Let us see the use of opening tag B, closing tag, ओपनिंग टैग आई, क्लोजिंग टैग एंड ओपनिंग टैग यू, क्लोजिंग टैग। तो बच्चों यहाँ पे हम जान लेते हैं कैसे हम बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन टैग्स को यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर आपको अपने टेक्स्ट को हाईलाइट करना है या उसे इटैलिक में दिखाना है या उसको बोल्ड दिखाना है या उसको अंडरलाइन करके दिखाना है, तो आप जो ये स्पेसिफिक टास्क है इन टैग्स को आप यूज़ करके अपने टेक्स्ट को बोल्ड दिखा सकते हैं, इटैलिक दिखा सकते हैं और अंडरलाइन करके भी दिखा सकते हैं। Subscript and superscript tag. Sometimes the text comprise of mathematical and chemical formulas, which includes subscript and superscript. In HTML, we can conveniently insert such symbols using the subscript and superscript tags. Tag description.
Opening tag sub closing tag displays the enclosed text at a level lower than the rest. Opening tag sub closing tag displays the enclosed text at a level higher than the rest. Let's see the use of opening tag sub closing tag and opening tag sub closing tag. तो बच्चों सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट टैग्स क्या होते हैं, ठीक है। कभी कभी हमें केमिकल फॉर्मूला दिखाना होता है या कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन दिखानी होती है जिसमें कुछ नंबर्स होते हैं, जैसे स्क्वायर रूट हो गया, तो उसमें नंबर के ऊपर भी आपको नंबर नजर आता है। तो ये आपके जो ऊपर की तरफ नंबर होते हैं ये आपके सुपरस्क्रिप्ट कराते हैं, और जो नंबर के नीचे छोटे छोटे नंबर नजर आते हैं ये आपके सबस्क्रिप्ट कहलाते हैं, ठीक है। तो इन्हें भी आप अपने एस्टिमेट डॉक्यूमेंट्स में कुछ टैग्स के साथ, एस्टिमेट टैग्स के साथ इन्हें दर्शा सकते हैं। तो बच्चों आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसका रिवीजन और दी गई एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे।